So today we're going to discuss first of all complements of numbers. So what is the meaning of complement? Any idea? Okay, let me explain. Basically, complements are used in digital computers in order to simplify the operation, which is somewhat like subtraction operation. Suppose I want to subtract two numbers. How my computer will do this thing? So for these types of purposes, we require the complements to be computed, and these complement supports or they simplify this particular operation. Likewise, these complements are also helpful for carrying out some logical manipulation. They are used simplifying operations leads to simpler, less expensive circuits to implement the operation. So it means if you are making any circuit simpler, cost effective, it definitely going to reduce the cost of the actual circuit जो आप use करो. Maybe जो it's the cost of your CPU or maybe other processor, right? So it supports these things. So in your complements, there are basically two types of complements for any base R. Here base R stands for, if suppose it's a binary, then base will be 2. If it's octal, then 8. Hexadecimal 16. It's decimal 10. So we're just generalizing it that for any base R system, we're having two types of complements. What are these complements? The first one is known as radix complement. क्या बोलते हैं? Radix complements or simply known as R's complement. R यहाँ पर क्या word use कर रहे हैं? We are standing R for the base, right? So radix complement. Likewise for the your binary base is 2, so we'll call it as 2's complement. In the term of octal, we'll call it 8's complement. For 16, it is known as hexadecimal complement or 16's complement, and for decimal, it is 10's complement, right? Along with radix complement, there is another complement known as diminished radix complement. That is named as R minus 1's complement. तो हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट हो गए, एक हो गया आर कॉम्प्लीमेंट, एक हो गया आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, राइट? अब देखते हैं दोनों में फर्क क्या है. If we talk about the diminished radix complement, in this complement we'll take a n digit number. Suppose आपको कोई नंबर गिवन है, उसके डिजिट सपोज करो n है, राइट? एंड विद बेस r, तो जो भी आपका नंबर गिवन होगा, सपोज करो नंबर आपको डेसिमल में होगा, किसी भी नंबर सिस्टम में गिवन होगा, तो आपने पहले देखना कि उसका बेस कितना है, दैट इज r, और उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज स्मॉल n. कैपिटल N denotes the number, right? And small n denotes the number of digits in that particular number. Then r minus 1's complement of n is known as the diminished radix complement and is given as r is to power n minus 1 minus n. अब क्या मतलब हुआ इसका कि let me open the source. If r suppose is equal to 2, is it visible to everyone? No, sir. No, sir. Wait, No, sir. wait. Now it's visible? Yes, sir. So if suppose binary, we will having r is equal to 2. So what it says that ki r raised to power n minus 1. So what I will put 2 raised to power n minus 1, right? Minus क्या करना है? Capital N. Capital N का मतलब क्या है? The number itself. Now let's take an example. Suppose my number is given to you is 1011. Suppose it is given in binary. अब कोई आपको बोले कि you have to compute its diminished radix complement, that is r minus 1 complement. तो कैसे निकालना है? Count the number of digits. कितने digits हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, right? So what I will do? 2 raised to power 4 minus 1 minus n. N is what? This number 1011. तो कितना आ गया देखो जरा यहाँ से 2 raised to power 4 कितना हो गया 16 minus 1 coming out to 15 minus 1011. तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, that is take a n digit number with base r, then compute r minus 1's complement known as diminished radix complement, and this is given by r raised to n minus 1 minus n. तो ये आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा.
बाइनरी में आपको बता दिया मैंने अभी, है ना। तो लाइकवाइज वी कैन कंप्यूट फॉर एनी नंबर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम्स ही हैज टेकन एग्जांपल ऑफ 4 डिजिट नंबर। सपोज ये नंबर ले लेते हैं वापस हम, सपोज ये नंबर आपको गिवन है, सेम नंबर ले लेता हूँ 1011 सपोज, इट इज गिवन टू यू इन डेसिमल, राइट। तो इसका अगर मैं r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालूं, r माइनस वन का मतलब क्या होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट। तो क्या तरीका होगा कि इसका बेस कितना है 10, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, 10 की पावर 4 माइनस 1 माइनस n कितना है 1011, राइट। तो अब क्या करोगे, या ये कितना आ गया 10 की पावर 4 माइनस 1, इट्स कमिंग आउट टू बी 9999। यस सर। इसमें से क्या मैं, हाँ जी बोलो। कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1011। तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ 4 टाइम्स 9 लिखो और नीचे 1011 लिख दो, तो सिंपल माइनस कर दो 8 8 9 8। सो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट और 9 कॉम्प्लीमेंट। सर हाँ सर यहाँ पर 999 नहीं आएगा कैसे, सर? 900। आप अच्छा देखो ना ठीक है 10 की पावर 4 है, ओके ओके ओके। इसमें 1 माइनस करो, कितना आएगा बताओ, 4 9 आएंगे ना, ओके। ठीक है। सर तो ये 15 हमारा में क्या से आया, कैसे करेंगे? 15 माइनस 1011। हाँ अब यहाँ पर 15 माइनस 1011, इसमें यहाँ पर क्या है कि जो ये नंबर है ये हमारा डेसिमल में है, तो इसका पहले बाइनरी निकालना पड़ेगा आपको। तो बाइनरी क्या आएगा इसका 15 का, 15 सर 1 हाँ ये सब ऑन हो जाएंगे डिजिट। ये माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ, 1 माइनस 1 0 0 1 0। सो दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। इसको जनरल क्या बोलेंगे, इट इज r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, जहां पर r क्या है आपका बेस। यस लेट्स गो बैक टू पीपीटी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 10, जैसे एग्जांपल है, अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, 5 है, 6 जितनी भी होगी उतने आपने पावर लगानी है, राइट। तो 10 की पावर वो कर दिया पहले और उसमें माइनस 1 किया तो कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्टकट, जब भी आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जितने डिजिट है उतने 9 लगाओ, उसमें से माइनस कर दो उसको, ये मतलब है ना कहने का, राइट। हाँ तो सिंपल माइनस कर दिया। अब आगे देखते हैं। So hence 9th complement of a decimal number is obtained by subtracting each digit from 9. So यहाँ पर देखो लिखा, for example the 9th complement of 5 4 6 7 0 0। तो ये कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 6 9 लगाए और उसमें से उस नंबर को नॉर्मल माइनस कर दिया हमने। तो दिस विल गॉट 4 5 3 2 9 5 299 सॉरी। Likewise if number is given to you 0 1 2 3 9 8, तो क्या करोगे, वही 6 डिजिट है, 6 9 लिखो उसमें माइनस कर दो। तो कभी भी कोई भी r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो तरीका यही है आपके पास कि जो आपका बेस है, बेस की पावर n, n stands for number of digits minus 1, right, and then minus that number. Let's take some more case. ये बाइनरी का जो डिस्कस किया था, r2 है तो यहाँ पर r माइनस 1 क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर बाइनरी में हम क्या बोलेंगे उसको, 2 कॉम्प्लीमेंट हाँ। एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी बोलो। सो ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप एक बारी और बता हाँ। देंगे? ये लो, लेट्स टेक बाइनरी वाला को, कौन से वाला, डेसिमल वाला डेसिमल वाला। कोई नंबर बोलो। कोई सा भी 5824। 5824, ठीक है। अब ये नंबर आपको गिवन है डेसिमल में और आपसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूट 9th कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो क्या करोगे, कितने डिजिट है इसके अंदर, 4 है, तो आई विल टेक फर्स्ट, बेस कितना 10 है, 10 की पावर 4, ये बेस लिया मैंने r और डिजिट्स लिए n, राइट। तो 10 की पावर 4 आ गया माइनस 1, इसमें से क्या करना माइनस आपने, ये नंबर। अब ये कितना हो गया, -1 -5824 और
9999, इसमें से 5824 को माइनस कर दिया हमने, 5714। क्लियर हुआ? यस सर। तो कभी भी कोई भी हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है यहाँ पर कि अगर आपके पास 4 डिजिट है तो 4 9 लगा दो चुपचाप और उसमें से सिंपल उस नंबर को माइनस कर दो तो आपका सीधा आंसर आ सर जाएगा। हाँ जी बोलो। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे सर? बिल्कुल। हाँ जी बताओ। नहीं सर, ये वाली नहीं, वो जो आप अच्छा दिखा PPT रहे वाली। थे, पीपीटी दिखा रहे थे। कॉम्प्लीमेंट था हाँ हाँ ये सर, वाली। ये 15 वाला जो क्वेश्चन सर बना नो, है वो कौन सा? नो इससे पीछे, इससे पीछे। एक मिनट रुको। एक सेकंड सर। बताओ क्या समझ नहीं आया। ये सर ये आ गया सर, वो खाली अच्छा। नोट कर रहा था मैं। ठीक है। क्लियर होगा सबको ये? यस सर। तो अभी इस स्लाइड से आपको इतना पता लग गया कि आपके पास दो टाइप से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं किसी भी बेस आर नंबर के। उसको क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, एक बोलते हैं डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट तो हमारा वही बेस वाला नंबर आर्स कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, जैसे 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 16s कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट। और डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में से एक माइनस कर दो तो उसमें बिकम 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी, 7s कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑक्टल, 15s कॉम्प्लीमेंट फॉर हेक्साडेसिमल एंड 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमने देखा कि अगर आपके पास 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल क्या करो, जितने डिजिट गिवन है आपको जिसका निकालना है उतने 9s लगाओ, उसमें से उसको माइनस कर दो। राइट, ये भी हमने सीखा है। अब आगे हमने जो देखा बाइनरी में हमने क्या देखा कि बेस इसका 2 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर अगर मैं लेवल देखूं तो 2 की पावर n-1 कितना होगा बताओ? 2 की पावर n-1 n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट अगेन। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो n = 4 का तो क्या आएगा, 1 के आगे 4 जीरो लगा दिए यस सर। है ना, और उसके बाद उसमें -1 किया हमने तो वो कितना आएगा, ऑल वंस। मींस इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगर शॉर्टकट में देखता हूं तो क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो इफ यू आर गिवन एनी नंबर, लेट्स से 101101, ये आपको बाइनरी में गिवन है, ठीक है। एज पर द फॉर्मूला ऑफ r-1 तो हम क्या कहते हैं कि जितना बेस है, बेस कितना है 2 की पावर n कितने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, यहाँ पर 6 है, 6 कर दिया -1। फिर माइनस क्या करते हैं हम, नंबर 101101। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 निकालूं तो कितना आएगा, दैट इज 1 with 6 zeros, क्योंकि यहाँ इसकी वेट 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। राइट, तो इसका वेट 2:6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो इट मींस इस नंबर में से मुझे क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। अब 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ यहाँ पर 0 - 1 क्या होगा, 9 नहीं, हाँ माइनस 9 कहां से आ गया, बाइनरी चल रहा है भाई। अच्छा 1 आएगा। 1 यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसमें भी 1 नहीं आएगा, फिर लास्ट में 0 आएगा, बाकी सब बस। में 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कितने 1s आए, देखो 6 आए। इसका मतलब क्या है कि जो हमें नंबर गिवन है, जितने डिजिट का नंबर है उतने 1 लगाओ, उसमें से माइनस कर दो उसको, क्योंकि देखो ना जो ये चीज आई है, ये चीज क्या निकाली हमने, ये निकाला ना ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को पता है कि नंबर मेरा 6 डिजिट का है तो मैं चुपचाप 6 1 लगाऊंगा और उसमें से इस नंबर को माइनस कर दूंगा। और माइनस करूंगा क्या आएगा, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 0 0 0 1 1 0। अब इस नंबर को, हाँ इस नंबर का मैं आपको और शॉर्ट करता हूँ, इस नंबर को इससे कंपेयर करो, क्या फर्क दिखता है आपको? सर जहाँ पे 1 थे वहाँ पे 0 हो गए वैसे। एग्जैक्टली। तो जब भी हमें नंबर बाइनरी में गिवन होता है और उसका मैं बोलूं आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो चुपचाप क्या करोगे आप,
0 को 1 कर दोगे, 1 को 0 कर दोगे. Okay, sir. Let's take one more example. Suppose number given है आपको 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 और मैं बोलूं इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा? 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0. क्लियर है? यस सर. इसमें किसी को डाउट तो बताओ मुझे. आई विल अगेन एक्सप्लेन. नो सर. सर उसमें बता दो ये सर सर वो 1s कॉम्प्लीमेंट है ना, हाँ, ये 1s कॉम्प्लीमेंट है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 1s कॉम्प्लीमेंट. और 2s कॉम्प्लीमेंट. उसमें भी आता हूँ, वो आऊंगा 2s कॉम्प्लीमेंट में. ठीक अभी मैं है आपको सिर्फ डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ. ये सर क्लियर है बच्चों को? हाँ बोलो बोलो. सर वो बता दो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और फर्क क्या हुआ फिर दोनों में? फर्क बच्चे ये होता है, जो एक होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने आपको, एक होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स. इसको बोलते हैं हम r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं हम r's कॉम्प्लीमेंट. ये फर्क है. तो r यहां पर क्या है? बेस. तो अगर r2 है तो ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट 2 माइनस 1. अगर r8 है तो ये हो गया 8s कॉम्प्लीमेंट, नीचे आ गया 7s कॉम्प्लीमेंट. अगर r16 है तो 16s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 15s कॉम्प्लीमेंट. अगर r10 है तो 10s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 9s कॉम्प्लीमेंट. ये फर्क है. ओके सर. Got it? यस Now सर. let's go back to your PPT. इतना क्लियर है सबको? yes sir. Okay. अब देखो आगे PPT में क्या कह रहे हैं. So since subtracting a binary bit 1 or 0 from 1 always yields the opposite binary number. So the complement 1's complement of a binary number is found by changing 1s to 0s and 0s to 1. अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखो, मान लो आपको नंबर 8 स्क्वायर गिवन है, तो 8 स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 100 है ना, Yes, क्योंकि sir. 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2. अब अगर मान लो मुझे लिखना हो 100 को इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, तो वो क्या आएगा? इट विल बी 10 स्क्वायर. सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट दिस इन बाइनरी, ओ सॉरी हेक्साडेसिमल, तो क्या बनेगा? 16 स्क्वायर. समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? ये चीज आई एम ट्राइंग टू शो यू that in octal number system or in binary number system or in your decimal number system how to represent the numbers. तो आपको पता है हर एक की वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है. यहाँ पर ऑक्टल में 8 की बेस चलेगा, 80 81 82. डेसिमल में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2. हेक्साडेसिमल में 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2. so it means if I want to represent the same, sorry, यस. तो यहाँ पर क्या है कि जो आपको बता रहा था मैं कि हेक्साडेसिमल में क्या हो गया, देखो 100 सेम नंबर था तीनों में, लेकिन फर्क क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? एक तरफ 64 आया, एक तरफ 100 आया, एक तरफ 256 आया. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ ऑक्टल सिस्टम में, तो क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट? देखो ध्यान से, इट्स 8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस n. देन अब 8 स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर 8 स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? वी विल नॉट से 64 माइनस 1. क्या बोलोगे यहाँ पर? 100 माइनस 1. लेट मी ओपन द पेज. रुको, जो आपके पास 8 स्क्वायर माइनस 1 लिखा मैंने, ऑक्टल वाली बात कर रहा हूं, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, सपोज करो आपका नंबर n, तो ये 8 स्क्वायर माइनस 1, यू विल नॉट से 63. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 स्क्वायर ऑक्टल में क्या होता है? 100. Isn't it? अब ये 100 में से जब मैं माइनस करूंगा 1 को, तो क्या आएगा बताओ मुझे? सर 7 आ जाएगा. 7 आ गया. यहाँ पर यहाँ पे भी 7 आ जाएगा. 7. राइट. तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इट इज 77 माइनस n. Likewise, if we take a complement of n in decimal system, it will be 10 square minus 1, then it will be 99 minus 1. तो ये फर्क है, देखो ध्यान से. क्लियर? सर हाँ जी बोलो. सर आप एक सेकंड के लिए जो साइड पे जो मेनू आ रहा है उसको साइड कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल.
Fine. So yes sir, fine. So 1 sec. एक्चुअली ये एडुपेन का वो है, ये पीछे जाता नहीं है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, अब हेक्स में देखो सेम चीज, 16 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, FF। क्लियर हो गया ये बात? सर हाँ बोलो। सर ये 77 माइनस n वाला बता दो सर एक बार। हाँ देखो, मैंने आपको जब ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, कि विल स्टार्ट द नंबर फ्रॉम 0 to 7 कैसे हम, है ना, 8 कैसे लिखा था हमने, ए बोलो, हाउ टू राइट 8 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम? भूल गए? 10 102 yes sir 9 को 11 till 17 है ना, yes sir उसके बाद क्या आया था ऊपर, 20 20 to 27, इस तरह काउंटिंग गई थी आपकी, yes sir कब तक गई थी, 70 to 77, 77 इसके बाद क्या आएगा नंबर नेक्स्ट, 00 100 यस सर। है ना, तो अब ये 100 किसके इक्विवेलेंट है, 64 64। तो अब 64 माइनस 1 63 लिखना होगा मुझे, तो 63 तो मेरा किस में आएगा, डेसिमल में। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 77 से ऑक्टल में। बेसिकली क्या है, जो हम माइनस कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 63, वो 63 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, लेकिन हम तो यहाँ पर ऑक्टल में डील कर रहे हैं, तो ऑक्टल में निकालना है, तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो क्या करो, 63 को चुपचाप 8 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 8 7 56, यस सर। एलसीएम कितना, रिमाइंडर कितना आएगा, 7, 7 फिर 800 8 77 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो हम वो माइनस कर रहे हैं बच्चे, वो हमारा डेसिमल में है, ये इसको अगर आपने ज्यादा क्लैरिटी है तो यहाँ बिल्कुल ये डेसिमल में आ रहा है हमारे पास, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उस नंबर सिस्टम में जो आप जिसको माइनस कर रहे हो। तो एन आपका ऑक्टल में गिवन है, कैपिटल एन, ठीक है ना, तो हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया इसको। सर हाँ बोलो। सर ये 100 को 64 कैसे लिखा? आप लेक्चर लगाए थे पहले वाले, सर लगाए हैं। फिर कैसे नहीं पता यार, देखो 100 लिखा मैंने, अगर मैं कहता हूँ ये ऑक्टल में है, तो इसका इक्वल डेसिमल क्या होगा बताओ मुझे, कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। हर एक डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, 1 into कितना है, 8 raised to power 2 प्लस 0 + 0 बिल्कुल ठीक, तो कितना आ गया ये, 64 टू द ठीक है बेस। सर। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर यस सर। ओके, तो ये तो हो गया कि कैसे आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब आगे चलते हैं, हाँ अब एग्जांपल ये, अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसका तो सिंपल हमने डिजिट को उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया, है ना, देख रहे हो, सिर्फ 1 का 0 0 का 1 जो भी हमने पढ़ा है वही चीज है। So similarly, r minus 1's complement of octal is obtained by subtracting each digit from 7. होगी बाइनरी में हमने किससे माइनस किया, ऑल 1 से, डेसिमल में किससे किया, ऑल 9 से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब ऑक्टल से हमने करना है 7's complement निकालना, तो क्या करोगे, जितने भी डिजिट है उतने 7 लगाओ, उसमें से माइनस कर दो। एग्रीड और नॉट? यस सर। और अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर है तो क्या करोगे, हर एक नंबर को किससे माइनस करोगे, एफ से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सर। हाँ बोलो बोलो। सर 1 सेकंड सर, एक प्रीवियस स्लाइड करना। हाँ करता हूँ, एक मिनट। सर 1 सेकंड, थैंक यू सर। तो यहाँ पर याद रखना कि जो आपके r - 1's कॉम्प्लीमेंट है,
ऑक्टल में वो हर एक नंबर को 7 से माइनस करना है और हेक्साडेसिमल में हर एक को f से माइनस करना है, राइट? Okay, sir. नाउ रिगार्डिंग द आर्स कॉम्प्लीमेंट, सो बाइनरी नंबर सिस्टम में आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? सर टूस ये पीपीटी कॉम्प्लीमेंट। क्या आप हमसे शेयर कर सकते हो? क्या चीज बचे? सर ये पीपीटी आप हमारे साथ हाँ शेयर हाँ, कर सकते मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। हो? कहाँ पे फिर भी, मतलब आपकी जहाँ ड्राइव को लोग या में डाल देंगे आप? यार, कोई इशू नहीं है। आपको मेल कर देंगे अगर कहोगे, या फिर उसमें डाल देंगे LMS में, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, nothing to worry। जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो सब अवेलेबल है आपके पास, समझ लो। पीपीटी भी, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम बात करते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो अब वो कैसे निकालते हैं? सो टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला पहले, उसमें क्या ऐड कर दो? 1 कर दो, राइट? तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आपने 1010 का निकाला, लेट्स टेक द क्वेश्चन हियर। सपोज 1010 नंबर गिवन है आपको बाइनरी में, एंड आपको पूछा है इसका कंप्यूट टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है आपने? पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बताया आपको मैंने? 0 का 1, 1 का 0, है ना? 0 1 0 1. 0 1, इसमें प्लस 1 कर दो, 0 1 कैरी 1 1 0। सो ये क्या आ गया? टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। किसका? इस नंबर का। Okay, sir. एक क्वेश्चन लिखो, आप करके दिखाओ। 1 0 1 1 0 1 0 1, compute its twos complement। सर 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1। बिल्कुल ठीक है, सबको आ गया? यस सर। चलो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। लिखो जरा, कंप्यूट द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट of number 52520। This number is given to you in decimal number system. Compute it ninth complement। 47470 4747 4747 9 9 आएगा, 0 नहीं बोलना। क्लियर हुआ? सर ये बोलो। कैसे किया था सर? ये वाला कैसे कैसे किया? किया? ये हाँ। नंबर गिवन है आपको, कितने डिजिट है इसके अंदर? सर इसमें 5 10 तो raised to 5 power लाइन 5 लगा दो। minus 1। तो अच्छा 5 ठीक लाइन है लगा ठीक दो, है ठीक है। ओके सर, हो गया, हो जाएगा? समझ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब एक और निकालो। सपोज नंबर गिवन है आपको 0.3267। अब निकालो इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। Point 6732 0.6732 32 करेक्ट। एक और लिखो, 25.639। इसका निकालो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। $74.360। यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर अनुज बंसल। गुड अनुज, शाबाश। अच्छा, अब ये निकालो एक और। सबका हो रहा है? किसका सर- नहीं हो तो बता दो। सर ये जो decimal वाला लास्ट बता वाला किया है, ये डेसिमल वाला, ये 25 वाला करा ये नहीं आया ना। क्यों? इसमें क्या दिक्कत सर है? ये 99.999 करो माइनस, सिंपल माइनस ही करना है यार। ओके ठीक है ठीक नहीं हो सकता? समझ गया। हो गया हो गया? मतलब जितने के आगे पॉइंट लगा होगा उतने 9 पे भी लगा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। और लेते हैं, चलो। लेट्स कंप्यूट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100। 0 1 0 0 1 1 0.001 राइट। लेट्स टेक 0.0110।
इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1.1001. yes sir 1.1001 1001 Sir, It's 1.1. 1.1001 1001 ठीक है। अब एक और लिखो। अब आप निकालोगे टेंस कॉम्प्लीमेंट। अब अब आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया। अब आपको अगर मान लो निकालना हो टेंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट, तो जो आपका वंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है उसमें +1 कर दो बस। गॉट इट? लेट्स टेक वन क्वेश्चन। लेट्स अगेन टेक द सेम नंबर 52520 जो हमने पहले लिया था। इसका आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले कितना आया था? 47480 47479 आया था ना पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। इसे +1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 47480 बिल्कुल ठीक बात। तो सर अगर दूसरे कोई मेथड से करना हो फिर? कौन से मेथड से दूसरे? सर मतलब जैसे वो वाला 10 सीधा 10 से कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर 10 9 लगा के माइनस कर दो। सीधा 10 के मतलब दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो कह रहा है कि अगर जैसे हमने जो पहले सॉल्व करे थे, जैसे हम 4 टाइम्स जब होता था, मतलब चार डिजिट का होता था, तो हम 4 दोनों कर हाँ, सकते वैसे। हो। इसे बात तो वही है, मान लो इसको करना है मेरे को 5 डिजिट है, तो 10 की पावर 5 -1 लिखूंगा और माइनस कर दूंगा ये 52520। यही बात है ना? हाँ जी सर। तो आएगा तो इससे भी यही चीज। राइट? सो इट विल गिव मी सेम आंसर। ये पहले वन, मतलब ये जो तरीका है इसका किसका तरीका है? टू कंप्यूट द r - 1's कॉम्प्लीमेंट और रादर 9's कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस केस। तो जो आंसर आया इसमें +1 कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 10's कॉम्प्लीमेंट। राइट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। Okay. Now compute the 10's complement of 0.3267. Point 6763. 0.67 63 6 कैसे आएगा भाई? 3 है sir. 3 ध्यान रखो। 3 यस, वही कह रहा था। क्या तो वही रहते पर कुछ और ना। ठीक है। अच्छा अब निकालो 10's complement of 25.639। 74.361. यस, क्लियर हो गया आपको ये? Yes, sir. चलो लेट्स गो बैक टू पीपीटी नाउ। ये हो गया आपका एग्जांपल। ये भी देख लो। 2496 का निकालो फटाफट। सर 2496 का 10's complement निकालो। सर हाँ बोलो बोलो। सर जो पिछला वाला एग्जांपल था 25.639, उसमें हमको 1 ऐड करना है या 0.1 करके ऐड करना है? वैसे आप बताओ मतलब क्या ऐड करोगे? सबसे लास्ट वाली प्लेस वैल्यू पे कर देना। ओके सर। सर फर्स्ट का आंसर सर 9.6733 नहीं आना चाहिए? किस वाले का? सर फर्स्ट वाले का। इस वाले का? यस सर। देखो जब यहाँ पर हमारे पास इंटीजर 0 में आता है ना, यस सर। तो इसको नहीं देखते आप। तो उस केस में क्या है? 10 की पावर 0 ओके सर। है ही नहीं वो। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम पीपीटी के ऊपर क्या आ रहा है। और 2496 से निकाला आप लोगों ने? 9975 कितना? 7504 आ गया। 7504. ओके नाउ लेट्स प्रैक्टिस नाउ 8's कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे है? जो 7's कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 ऐड करना है हमें। लेट्स टेक 562 निकालो। 562 गिवन है आपको। इसका निकालो आप 8's कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे? 326। 326 सबका ही आ रहा है? Sir, 3 to 5. 3 to 6. 5 को 6 3 to 6. 3 to 6. 2 8's कॉम्प्लीमेंट राइट। अगर आप 7's कॉम्प्लीमेंट की बात करो तो वो कितना आएगा? 3 to 5. तो ये मेरा 7's कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये मेरा 8 कॉम्प्लीमेंट आ गया। पर यहाँ पर कुछ और आ रहा है, देखो गलत किया आपने कुछ।
सर 777 में से माइनस करेंगे ना, 215 और 216 आएगा। हाँ तो फिर 3 2 क्यों बोल रहे हो? 8 कॉम्प्लीमेंट 8 में आपने तीनों 8 से माइनस कर दिया है ना? वही सर 777 में क्या से करते करना हो है। यार? ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आपने 7 7 से माइनस करना है 5 6 2, तो कितना आ गया? 5 215 215। ये वंस को ये आ गया 7 कॉम्प्लीमेंट, इसमें +1 कर दो तो आ गया 216 इज योर 8 कॉम्प्लीमेंट, राइट? यस सर। अब निकालते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेट्स टेक अ क्वेश्चन 2AE। निकालो इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालो और निकालो 15 कॉम्प्लीमेंट, दोनों निकालो। तो इसमें क्या करेंगे? 3 डिजिट्स हैं तो 3F लगा दो। D51 15 कॉम्प्लीमेंट। हाँ 3F में से 2AE माइनस कर दो। D51 15 कॉम्प्लीमेंट। कितना आया? D51 D51 51 सबका ये आ रहा है। ये क्या आया? 15 को 16 कॉम्प्लीमेंट क्या आया? यस सर 15 कॉम्प्लीमेंट। 15 कॉम्प्लीमेंट, तो 16 कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? D52 D52। कोई बच्चा इसको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताओ। अभी आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सिखा रहे सर हैं। ये वाला फिर बताना। हाँ दोबारा लिखो। हमारे पास नंबर था 2AE, तो बेस 16। इसको जब आपने निकालना है टू इट्स इक्विवेलेंट 15 से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे? कितने डिजिट है? 3 है तो 3F लगा दो, उसमें से 2AE को माइनस कर दो। F क्या होता है? 15। E क्या होता है? 14। 15 माइनस 14 क्या आएगा? 1। F 15 है, A क्या है? 10। 15 माइनस 10 कितना आएगा? 5। 15 माइनस 2 13। 13 क्या होता है? D। अब ये मेरा क्या आ गया? 15 कॉम्प्लीमेंट। इसमें +1 कर दिया मैंने, 2 5 D। ये क्या बन गया मेरा? 16 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सर इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है? अगर 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यहाँ में पहले 15 निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब ये आपके पास जो टेबल है, इस टेबल में क्या दिखा रहे हैं कि जो अगर आपका बेस R है, तो मैंने बताया था आपको R और R-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। तो अगर डेसिमल में बोलेंगे 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल में 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी में 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट एंड हेक्साडेसिमल में 15 कॉम्प्लीमेंट, 6 कॉम्प्लीमेंट, राइट? So diminished reduced complement is R-1's complement and reduced complement is R's complement. तो अगर एग्जाम में गिवन हो आपको कि reduced complement निकालो तो आपको पता हो कि इसका मतलब R's complement है, या diminished reduced complement निकालो तो इसका मतलब है R-1's complement or the other way around, right? अब देखो ध्यान से जरा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? if the original number n contains a radix point, the point is removed temporarily to form R's or R-1 complement. Thereafter, the radix point is then restored to the complemented number in the same relative position. क्या मतलब है इसका? If your original number n का जो हम कहा 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर है, तो n हमारे पास क्या है? ओरिजिनल नंबर। If that contains a radix point, radix point का मतलब क्या हुआ? Full stop, right? जो डेसिमल पॉइंट होता है बीच में, the point is temporarily removed to form R's and R-1 complement. जैसे हमने निकाला था 26.3449, तो हमने पॉइंट को देखा नहीं, हमने 9 लगा दिए, 5 9 लगा दिए, उसके बाद वो उसको माइनस कर दिया, फिर +1 भी कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स लगा दिए वापस। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि if the original number n contains a radix point, the point is removed temporarily to form the R's complement or R-1's complement, and thereafter radix point is then restored to the complementing number in the same relative position. अगर ये चीज नहीं क्लियर, मैं आपको दिखाया तो हमने जो हमने किया था पीछे, लेट मी गो बैक, ये वाला, ये 26.69 किया था ना हमने। तो अगर इसका आपने जब निकाला तो क्या किया था हमने?
वी हैव टेकन 5 9s, उसमें से आपने कहा था 25, इसको माइनस कर दो, आपने माइनस किया 0 6 3 4 7 आया था, फिर मैंने कहा था +1 कर दो टू कंप्यूट द 10s कॉम्प्लीमेंट, 1 6 3 4 7। तो अब ये पॉइंट जो था वो यहाँ पर आ गया। अब ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर 1 कहाँ ऐड करेंगे हम, तो हमने 1 कहाँ ऐड किया था, यहाँ पर ऐड किया था इस वाले में। तो जब हम आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं या r-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो टेम्परेरीली हमने रेडिक्स पॉइंट को रिमूव कर देना है उसमें से। फिर जब निकाल दिया आर्स कॉम्प्लीमेंट या r-1 कॉम्प्लीमेंट, देन यू हैव टू प्लेस एट सेम लोकेशन जहां पर पहले था वो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। Okay, so let me go back to the PPT now. So complement of the complement क्या होगा? सेम नंबर। Same number. So complement of the complement restores the number to its original value. तो अगर मान लो मैं कोई a का complement निकालता हूँ, कोई भी नंबर a given है और a का डबल complement निकालता हूँ, तो it means it is going to be same number. So in notation we will write like this. That is complement means suppose a number है, a complement means single bar. If I do double bar, it means 2 complements. So this is going to be a only. चाहे वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो आपका 8th कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपका 12th 15th कॉम्प्लीमेंट हो, जो भी एनी कॉम्प्लीमेंट जो मैंने पढ़े हैं, हर एक कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करूंगा उसी नंबर सिस्टम में, तो आपका क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर ही रिस्टोर हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इफ अ नंबर इज कॉम्प्लीमेंटेड ट्वाइस, इट रिजल्ट्स इन द सेम नंबर, राइट। चलो आगे देखते हैं। यहां तक किसको डाउट तो बताओ मुझे कोई। नो सर। ओके, हेक्सा में क्या बताओ? वो जो 2a वाला एग्जांपल था। ये वाला, इसमें क्या डाउट बताओ? हाँ जी सर। सर ये इसका 16 कॉम्प्लीमेंट में हमने +1 करा, हाँ, तो सर उससे पहले ये FF वाला इसका 15 वाले में कैसे हुआ ये, मतलब 15 माइनस 2 थोड़ी क्या मुझे होता है? इसमें 13। प्रॉब्लम है। 15 माइनस 2 क्या होता है बताओ? 13 होता है ना। 13 13 का मतलब क्या होता है? डी। D। तो डी लिखा हमने, देखो यहाँ पे। नहीं सर, लाइक ये 16th कॉम्प्लीमेंट निकाला हाँ, हुआ है या 15th निकाला है? ये जो सा निकाला है, दिस इज 16th कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, देखो आगे, और ये 15th कॉम्प्लीमेंट है। तो सर 15 निकालने के लिए 3 एफ यूज, मतलब फिर अभी देखो देखो हमने क्या किया था, हमने आपको बोला जब भी आपने r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि 1 कॉम्प्लीमेंट होगा या 7 कॉम्प्लीमेंट होगा या 9 कॉम्प्लीमेंट होगा या 15 कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो अगर 1 निकालना तो जितने डिजिट है उतने 1 लगा दो। मान लो 4 डिजिट 4 1 लगा दिए। 7 में ऑक्टल में है तो आप 4 7 लगा दो। 9 में 4 9 लगा दिए। 15 है तो आपने 4 F लगा दिए, उसमें से माइनस करो नंबर को। ये तो करते हैं अब तक हम। ओके सर। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर माइनस किया, उसके बाद जो आया हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट उसमें +1 कर दिया, इट गिव्स यू r's कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यस सर। Okay. So अब देखो, now we'll talk about the number representation in binary. So there are different types of representation. One is unsigned number representation. Another one is signed number representation. Then we're having a ones complement representation, twos complement representation. अब होता क्या है, जो आपका unsigned, जैसे हम कहते हैं ना, unsigned का मतलब क्या है कि इसमें साइन नहीं आ रहा, राइट। सो अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपका साइन भी आता है नंबर के अंदर। एक होती है वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सो योर नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी कैन बी एनी ऑफ दीस टाइप्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द अनसाइंड बाइनरी अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर होता क्या है, स्टैंडर्ड बाइनरी एनकोडिंग इज फॉलोड। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड, देयर आर नो नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर साइन नहीं आ रहा। तो अगर साइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कि किसी नंबर का कोई अगर साइन नहीं लगा हो डेसिमल में तो इट्स बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव।
So likewise in your unassigned numbers, unsigned binary numbers का मतलब क्या है? Here there is no negative numbers. All are represented as positive values because there is no separate digit which is used for representing a sign. In the category of unsigned number representation I'm talking about, right? Range क्या होगी इसकी? अगर n bit का number है तो उसकी range होगी 0 to 2 raised to n minus 1. For example, if I consider here, suppose n is 4. So by default 2 raised to 4 minus 1 is the maximum value and minimum is 0. So ये मेरी range होगी 0 to 50. तो अगर आपके पास n bits range है, कोई number है, तो उसकी range क्या होगी? 0 to 2 raised to n minus 1. Then, for example, ये दिया हुआ है कि for representation of first 16 decimal numbers from 0 to 16, they requires 4-bit binary numbers, right? और range क्या होगी इसकी? 0 to 15. और numbers कितने होंगे total? 16 numbers होंगे. These are the numbers जो हमने already पहले पढ़े हुए हैं. Now, if unsigned your numbers are given to you, then how you will perform the subtraction of unsigned numbers with R's complement method? ये हम पढ़ते हैं अभी हम. तो इसमें क्या है? एक मिनट. तो वैसे करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा, 1 मिनट रहेगा आपका, है ना? यहाँ तक क्लियर होगा सबको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? We'll start next time from there only subtraction से. सर प्रीवियस बोलो। स्लाइड करना है सर, एक सेकंड बस. सर आप ये पीपीटी आज ही शेयर कर दोगे? पीपीटी कर देता हूँ. हाँ ठीक है बस. थैंक यू सर, हो गया. ओके. सर आप ये LMS पे शेयर करोगे? LMS पे डाल देंगे.